أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج پاکستان کا 75واں یوم آزادی، 75 سال گزر گئے پاکستان بنے ہوئے۔ آج ہم اس آزادی کا شکر اور جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، لیکن اے پاکستان کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، آج اس آزادی کے جشن کے موقع پر دل بوجھل ہے۔ آج پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، پاکستان کے گلی کوچوں کو دیکھ کر، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر آج یہ دل بوجھل ہے۔ جس طرح کسی تہوار پہ، عید بقرعید پر جب آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی خوشی اس فیلنگ کے ساتھ مل جاتی ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ والوں کے نہ ہونے کا دکھ آپ کو آتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر وہ آپ کے درمیان نہیں ہے۔ لیکن آج اسی طرح سے اس 75ویں جشن آزادی کے موقع پر جب میں پاکستان اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بوجھل ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں سے اس کراچی اس جشن کو منا کر واپس گھر جائیں گے تو ہمیں لائٹ نہیں ملے گی گھر پہ۔ ہم جب صبح اٹھیں گے سو کر تو ہمیں پانی ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا ہوگا۔ ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تمہارے گھر کا گٹر ابل رہا ہوگا، ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ ہم جب اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر نکلیں گے کوئی سڑک ثابت ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ آج 75 سال گزر جانے کے باوجود کراچی جیسا شہر جو کہ پاکستان بنانے والوں کا، پاکستان کو چلانے والوں کا شہر ہے، آج 90% کراچی میں پینے کا پانی نہیں آتا، آتا ہے تو گٹر ملا پانی آتا ہے۔ آج اسی کراچی میں، اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ذرا سی بارش میں پورا خاندان موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر کر جان دے دیتا ہے۔ آج ان تمام مسائل پر اگر میرے ملک کو چلانے والے اگر فکر مند ہوتے، پریشان ہوتے اور کچھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کمال میں اتنی جرت ہے کہ اگر میرا دشمن بھی میرے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرے گا، میرے اندر یہ جرت ہے کہ میں لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کروں، تعریف کروں۔ لیکن میں کہاں سے امید لاؤں، کہاں سے آس لاؤں؟ کیا ہمارے مرنے پہ کوئی متوجہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اس تباہی بربادی کے بعد بھی ہم نے اپنے رستے کو صحیح کیا؟ ہم نے اپنے کالے کرتوت چھوڑے؟ حکمرانوں نے نہیں چھوڑے۔ آج یہ ملک ہر روز خبر آتی ہے اتنی قربانیوں کے بعد بننے والا یہ ملک 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، شہر کے شہر چھوڑے، آبا و اجداد کی قبریں چھوڑی، گھر بار چھوڑا، ٹرین کی ٹرینیں کٹوا دی، اپنے سامنے اپنے گھر کو، اپنے تمام جہاں کو اجڑتے دیکھا۔ کس لیے؟ پاکستان کے لیے۔ کس لیے؟ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اے پاکستان کے لوگوں، کیا انگریز ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا؟ نہیں، انگریز کے دور میں بھی مسجدیں چلتی تھی۔ کیا انگریز ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتا تھا؟ نہیں، انگریز کے دور میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ کیا انگریز ہمیں حج پر نہیں جانے دیتا تھا؟ نہیں، انگریز کے دور میں بھی حج پر جاتے تھے۔ نماز پڑھنے پہ اس انگریز کے زمانے میں بھی پابندی نہیں تھی، روزہ رکھنے پہ اس انگریز کے زمانے میں بھی پابندی نہیں تھی، حج کرنے پہ اس انگریز کے زمانے میں بھی پابندی نہیں تھی۔ ہاں، انگریز ہماری زمین پر، ہماری گلی میں حق کے حکمرانی نہیں دیتا تھا، ہمیں اپنی گلیوں پر حکمرانی کرنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ تو آج کا یہ پاکستان آزاد پاکستان کا حکمران کیا کر رہا ہے؟ آج کا یہ آزاد پاکستان کا حکمران کیا کر رہا ہے؟ آج بھی وہ مجھے میری گلیوں کی حکمرانی کا اختیار نہیں دے رہا۔ وہ ہم آزاد کہاں ہوئے؟ گورے انگریز چلے گئے اور یہ کالے انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ پاکستان دے کر چلے گئے۔ اے کراچی کے نوجوانوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اے پاکستان کے نوجوانوں، آزادی ادھوری ملی ہے، ابھی آزادی کی
तकमील नहीं हुई, अभी आजादी मुकम्मल नहीं हुई, हम आजाद नहीं हुए। हम एक गासिब से निकलकर हम दूसरे गासिबों के, जागीरदारों के, वडेरों के सरमायादारी की हुक्मरानी में आ गए हैं, जो हम पर अंग्रेज से ज्यादा जुल्म कर रहा है और उसको कोई फिक्र नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया था कि बाप के बाद उसका बेटा, किसी एक खानदान के बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी यहाँ पर हुक्मरान बनते रहे। अच्छा चलो भाई बनो, लेकिन इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ करो। नहीं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो है नौजवानों, अभी आजादी अधूरी है, अभी तकमील आजादी बाकी है और ये पाक सरजमीन पार्टी इस पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद कराएगी इंशाअल्लाह ताला। हकीकी आजादी, इस पाकिस्तान की आजादी, मुकम्मल आजादी की तकमील पाक सरजमीन पार्टी करवाएगी। आज कहते हैं मुल्क बहुत माली बहरान में है, रोजाना अजीब अजीब खबर आती है। आज ये एनालिसिस आ गया कि पता नहीं पाकिस्तान कितने आगे चलेगा या नहीं चलेगा। पाकिस्तान के फाइनेंसेस खराब हो गए, पाकिस्तान की मईशत खराब हो गई, पाकिस्तान में डॉलर कहाँ जा रहा है, ये सारी खबरें आ रही हैं। महंगाई का उरूज है, हर चीज तबाही बर्बादी पे है, लोन पर चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात में हमें गरीबों को और आवाम को तो कहा जाता है कि आवाम सब्र करें, घबराएं ना, परेशान ना हो, महंगाई बर्दाश्त करें, गटर मिला पानी बर्दाश्त करें, बेरोजगारी बर्दाश्त करें। बिजली नहीं आ रही, हैदराबाद में 18 दिनों तक बिजली नहीं है, कराची में 18 घंटों तक बिजली नहीं है। कहते हैं आवाम बर्दाश्त करें। तो ऐ हुक्मरानों, क्या तुमने भी कोई हराम खाने में कोई कमी कर दी है हमें बर्दाश्त कर कह के? कौन से इदारे में रिश्वत कम हो गई है बताओ? ऐसे हालात में जब पाकिस्तान आज तबाही के दाने में, क्या किसी हुक्मरान की, किसी सरकारी अफसर की रिश्वत में भी कोई कमी आई है? नहीं आई है। इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहले कहते थे कि भाई हराम रिश्वत कमाने का परसेंटेज है, अब कहते हैं भाई ठेकेदार को कहते हैं रोड का ठेका मिला तो कहते हैं भाई तेरा कितना प्रॉफिट है इसके ऊपर, वो कहते हैं 15% कैश पकड़ो और फाइल पे साइन करके सारा पैसा निकाल कर हमारे हवाले कर दो। कागजों पे सड़क बन गई, एक इदारे से रिश्वत के रेट कम नहीं हुए। ऐसे हालात में भी एक इदारे से भी रिश्वत के रेट कम नहीं हुए। तो आज इस आजादी के मौके पर आज दिल बोझल है कि हम इतने खूबसूरत मुल्क को, इतने कामयाब, इतने कुर्बानी से हासिल किए हुए मुल्क को हम कहाँ ले आए हैं। आज इस सूबे में ये हालात हैं कि पीने के पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज वजीर आला है। किस दुनिया में वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज होता है? आज वाटर बोर्ड का इंचार्ज वजीर आला है। अंग्रेज ने भी ये काम, जब हम गुलाम थे, उस गुलाम ने भी नीचे इलाके के लोगों को ये काम दे रखा है। ये आजादी हासिल करने के बाद आज का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है। कौन सी आजादी है? किस चीज की आजादी है? काय की आजादी है? कराची के लोगों, अभी आजादी कंप्लीट नहीं हुई, हम आसमान से गिरे खजूर में डक गए, ये वाली बात है। इन हुक्मरानों से जब तक हम इस मुल्क को, इस जागीरदारों, वडेरों से, सरमायादारों से, पाकिस्तान लूटने वालों से जब तक इस मुल्क को आजाद नहीं कराएंगे, ये मुल्क आजाद नहीं होगा। तो अभी तकमील आजादी बाकी है, आजादी को कंप्लीट होना है। तो हाँ, हम सब यहाँ जमा हैं अपनी आजादी की तजदीद करने के लिए। हाँ, हम सब जमा हैं, हम अपनी आजादी और उस मकसद की तजदीद करने के लिए जमा हैं, उस मकसद की तजदीद करने के लिए जमा हैं जिस मकसद के लिए मेरे आबा अजदाद ने, आपके आबा अजदाद ने इस पाक वतन को हासिल किया। आज उसकी तजदीद का दिन है कि जिस मकसद के लिए हमने इसको हासिल किया था, हम उन मकासद से बहुत दूर चले गए। तो इसकी आज तजदीद की जरूरत है। आज पाकिस्तान के नौजवानों को कराची के इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से खड़े होकर मैं आवाज लगाना चाहता हूँ, ऐ पाकिस्तान के नौजवानों, तुम्हारे ऊपर कड़ा वक्त आ गया है। इस आजादी के मौके पर आओ आज एक वादा करते हैं कि जिस कुर्बानी के बाद हमारे आबा अजदाद ने ये वतन हासिल किया था और ये वतन किसी यरगमाली के हाथों में यरगमाल हो गया है, हम आज इस मुल्क को यरगमाल करने वालों का पीछा करेंगे और इस मुल्क के लोगों को हकीकी और इस मुल्क के लोगों को पूरी कंप्लीट आजादी देंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो?
हुआ। कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारा लगाकर हमारे आबा व अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल किया। पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून इस मुल्क में, प्रीएम्बल में पहले पेश में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ नहीं बनेगा। ये आईन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान आजाद हुआ। आज उसी पाकिस्तान में सूद का निजाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर आए कुरान, उस कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि सूद का काम करने वाले और उसके अंदर दाखिल होने वालों से, उस निजाम में अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। अल्लाह ने कुरान में लिख दिया कि सूद में इन्वॉल्व होने वालों से अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम 75 सालों से अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग कर रहे हैं। हम पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के कलमे के नाम पर आबाद हुआ। हम धोखा दे रहे हैं, हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। कैसे तबाही बर्बादी से बचेंगे? कैसे माशी निजाम सही होगा? अल्लाह कह रहा है कि सूद का कारोबार निजाम चलाने वालों से अल्लाह और उसके रसूल की खुली जंग है। तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। सरेंडर करो, अल्लाह के आगे हथियार डालो। आज शरी अदालत ने तारीखी फैसला 20 सालों के बाद दिया कि पाकिस्तान से 5 सालों में सूद का निजाम खत्म हो जाएगा। दुनिया में कई ममालिक है जहाँ पर सूद का निजाम नहीं है और अल्लाह की रहमत बरसती है वहाँ पे। आज सारे बैंक मिलकर उस सुप्रीम कोर्ट के शरी अदालत के अहकामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को कहता हूँ, सारे उल्टे काम करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई का मत सोचो, तबाह बर्बाद हो जाओगे। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई। जो अमेरिका कहता था तालिबान दहशतगर्द, इनसे बात नहीं होगी, बात भी कर ली, जंग भी खत्म हो गई। और हजारों तालिबान जो कि अमेरिका के कैद में थे, अमेरिका ने आजाद कर दिए। हजारों अमेरिकी कैदी जो कि तालिबान की कैद में थे, तालिबान ने आजाद कर दिए। अगर कोई आजाद नहीं हुई तो एक मासूम लड़की, एक मासूम मिस पाकिस्तान की बेटी जिसका नाम आफिया सिद्दीकी है, जिसका नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी है। ना वो अफगानी है, ना वो अमेरिकन है, वो पाकिस्तानी है। तालिबान छूट गए, अमेरिकी छूट गए, अफगानिस्तान पे हुकूमत बन गई। अगर आज भी कोई कैद है तो वो आफिया सिद्दीकी कैद है। ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम्हारे मुंह में क्या है कि तुम्हारी जुबानें बंद हैं? तुम्हें खौफ नहीं आता मरने से? जब अमेरिका तुमसे मदद मांगता है कि अफगानिस्तान में हमारी मदद करो, तो तुम्हारी जुबानें नहीं चलती कि मेरी बेटी को रिहा करो, इस कौम की बेटी को रिहा करो। कौमें ऐसे नहीं बनती। तुम जब मौजे माशरे की झलकियां नजर आती हैं, अगर कोई जानवर बिजली के पोल पर चढ़ जाए, एक बिल्ली, और उसको खतरा हो कि उसको करंट लग जाएगा, पूरे शहर की इंतजामिया हरकत में आ जाती है, क्रेने ले आते हैं, उसको जाकर उस बिल्ली के बच्चे को ऊपर से निकालकर जानवर को। कौमें ऐसी होती है, अपने मुल्क में अपने जानवरों की हिफाजत करती है। यहाँ पूरा पूरा घराना नाले में गिरकर मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल बोझल है इस आजादी के दिन, ये दिल बोझल है। ऐसा पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने नहीं सोचा था, ऐसे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। तो ऐ नौजवानों, हमारे कांधों पर एक बोझ आ गया है, हमारे कांधों पर जिम्मेदारी आ गई है कि जो पाक वतन मेरे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद जिन ख्वाबों के साथ आजाद करवाया था, ये किसी के कब्जे में चला गया है। हमें इस आजादी को मुकम्मल करना है, हमें इस आजादी की तकमील करनी है। हम जश्न आजादी के साथ हम इस पाकिस्तान की आजादी की तकमील का दिन ऐलान करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांसों तक इस अधूरी आजादी को मुकम्मल करेंगे, जिसमें एक आम इंसान को इंसाफ मिलेगा, उसको जीने का हक मिलेगा, उसके दरवाजे पर लाकर आसाइश और वसाइल और इख्तियारात उसके दरवाजे पर देंगे। बोलो ए कराची वालों, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तो बस आज की शाम, आज की रात तकमील आजादी के नाम, जो आजादी हमारे आबा व अजदाद ने हासिल की थी, उसको मुकम्मल करने का अहद करते हैं। उस आजादी के, उस ख्वाब के ताबीर को मुकम्मल करने का अहद करते हैं। खुश रहो।
इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिंदगियों में हकीकी आजादी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान